Good morning, class 7. So we were doing our grammar part, and yesterday we have completed with the chapter prepositions, no, adverbs. So we have started with the chapter adverbs, that is our chapter number 14. Yesterday we have completed chapter number 14, and now we are going to start with chapter 15, that is the position of adverbs. Position of adverbs. So this is not that important chapter, but still I thought that I should explain. You should know that what are the positions of adverbs. So now adverb should be placed as near as possible to the word that which it qualifies, or before the position of the adverb sometimes changes the meaning of the whole sentence. जो हमारा adverb है वो अक्सर कहाँ पे place होना चाहिए? To the word. It should be nearest possible. An adverb should be placed as near as possible to the word which it qualifies. ठीक है, जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा है हमें बिल्कुल उसको कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड प्लेस द एडवर्ब nearest to that the word it qualifies, because the position of the adverbs it sometimes changes the meaning also. Later सरला, now look at these examples. हम कुछ examples study करते हैं so we will understand better. Later सरला ate some porridge. Later सरला ate some porridge. Second sentence is Sarla later ate some porridge. ठीक है, Sarla ate some porridge later. Sarla ate some porridge later. यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल यूज किया है. Here we have placed our adverb in the beginning. Here we have placed the adverb near our verb, and here we have placed the adverb in the end. Here later Sarla ate some porridge. Later it is telling you about the time. यहाँ पे आपको वो टाइम बता रहा है कि सरला ने पॉरिज कब खाई. लेटर बाद में टाइम बता रहा है आपको. सरला लेटर एट सम पॉरिज. हियर इट इज मोर फॉर्मल लाइक अ रिपोर्ट. यहाँ पे आपको वो बता रहा है इट इज जस्ट लाइक अ इट इज रिपोर्टिंग समथिंग. ये आपको कुछ रिपोर्ट कर रहा है. सरला लेटर एट सम पॉरिज मीन्स आपने किसी को रिपोर्ट कर दी. रिपोर्ट इन द सेंस आप किसी को बता रहे हैं सरला लेटर एट सम पॉरिज. सरला एट सम पॉरिज लेटर. नाउ हियर दिस इज न्यूट्रल, नो पर्टिकुलर एम्फसिस. सरला एट सम पॉरिज लेटर, यहाँ पे नो इम्पोर्टेंस इज देयर. ये न्यूट्रल है कि सरला ने पॉरेज खाया बाद में कोई नहीं देखता. यहाँ पे हमने इस किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे हम टाइम बता रहे हैं कि सरला लेटर सरला मीन्स बाद में सरला ने पॉरेज खाया. तो देखिए कितना फ़र्क पड़ गया तीनों सेंटेंसेस में. नाउ द चाइल्ड इज़ हैप्पी. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ द चाइल्ड इज़ हैप्पी. सेकेंड में हम डाल देते हैं द चाइल्ड इज हैप्पी नाउ.
here. थर्ड में हम डालते हैं द चाइल्ड इज नाउ हैप्पी. Now the child is happy. Again it is telling you the time. इस टाइम पे अब जो है हमारा चाइल्ड हैप्पी है. The child is happy now means अब जो बच्चा है वो खुश है. The child is now happy. तो there is a lot of difference. He got up suddenly and left the room. He got up suddenly, he left the room. He got up suddenly. एकदम उठा, रूम छोड़ दिया. Suddenly he got up and left the room. He suddenly got up and left the room. बेशक हमने इसको different positions पे लगाया है, but it is changing the meaning of the sentence. यहाँ पे जो है now the child is happy. अब जो है बच्चा खुश है. The child is happy now. Child खुश है अब. The child is now happy. Child अब खुश है. तो इससे क्या है, आपकी जो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स जो होता है प्लेसिंग, उससे भी फर्क पड़ता है मीनिंग का. नाउ वी कम टू द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, अब हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ लगते हैं. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द मेन वर्ब. ये हमारे मेन वर्ब के इमीडिएटली पहले लगते हैं. हमारा जो मेन वर्ब है उससे एकदम पहले लगेंगे फ्रीक्वेंसी वाले. इफ इट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय अ हेल्पिंग और एन ऑक्सिलरी वर्ब. These are placed immediately before the main verb. अगर उनके साथ कोई helping verb या auxiliary verb नहीं लगा हुआ है, जैसे the child often cries. The child cries often उससे बिल्कुल पहले. The child often cries. ये हमारा मेन वर्ब है, इससे एग्जैक्टली पहले ये लग गया है फ्रीक्वेंसी. चाइल्ड ऑफन क्राइज मीन्स आपको बता रहा है कि बच्चा अक्सर रोता रहता है. फ्रीक्वेंसी बता रहा है. द नेबर्स नेवर विजिट हिम. द नेबर्स नेवर विजिट हिम. नेवर ये आ गया हमारा मेन वर्ब और ये इससे पहले इसको प्लेस किया गया है कि जो नेबर्स हैं उसको कभी विजिट नहीं करते हैं. मीन्स आपको ये बता रहे हैं कि कितने टाइम इंटरवल के बाद एक्शन होता है. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड आफ्टर बी वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स. जब हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बी वर्ब्स के साथ यूज हो रहा है, दे आर प्लेस्ड आफ्टर बी वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब. फिर वो बी वर्ब्स के बाद में लगाए जाते हैं व्हेन दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज ऑफन लेट फॉर टू स्कूल. माई सिस्टर इज ऑफन लेट फॉर स्कूल. अब यहाँ पे है ऑफन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड आफ्टर बी वर्ब्स. ये हमारा बी वर्ब है. इज ऑफन ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी. ये हमारा आ गया मेन वर्ब. अब यहाँ पे जो है हमारा जो मेन वर्ब है वो ही हमारा एडवर्ब है. और तो कोई यहाँ एडवर्ब है नहीं, देखिए, है ना. तो जो हमारा मेन वर्ब है वो हमारा एडवर्ब है. तो ये हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद ये लगा है ऑफन और मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने फ्रीक्वेंसी वाला लगा दिया. माई टीचर इज़ नेवर लेट. इज़ और लेट के बीच में हमारा फ्रीक्वेंसी वाला लग गया. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी इफ द वर्ब कंसिस्ट्स वन और मोर ऑक्सिलरीज. He has often helped me. Placed after first auxiliary means helping verb if the verb consists one or more. Okay. He has often helped me.
My grandfather has never taken any medicines. Adverbs of frequency are placed after the first auxiliary. जो हमारे ये एडवर्ब्स हैं, अगर इसमें हमारी इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑक्सिलरी, अगर हमारा जो वर्ब है उसमें एक से ज़्यादा ऑक्सिलरीज हैं, तो ये कहाँ पे प्लेस होता है? इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी. तो ये पहले ऑक्सिलरी और द हेल्पिंग के सामने लग जाता है. जैसे ही हैज़ ऑफन हेल्प मी, हैज़ के बाद लग गया ऑफन, हेल्प्ड मी. माई ग्रैंडफादर हैज़ नेवर टेकन एनी मेडिसिन, हैज़ फिर नेवर लग गया, टेकन, तो इन दोनों के बीच में लग जाता है. Many adverbs that express frequency can also be placed at either the beginning or at the end of the sentence, although some cannot be. So sometimes it happens that adverbs of frequency, they are placed at the beginning or at the end, but it is not compulsory that every time they are placed in the beginning or the end. They can change. So when they are placed in these alternate positions, the meaning of the adverb is much stronger. Frequently, I visit France frequently. अगर मैं ऐसा बोलूँ I visit France frequently, तो इसमें मैंने एम्फेसिस किस पे दिया? फ्रीक्वेंटली पे. ठीक है ना? I visit, अब हमने एडवर्ब लिया फ्रीक्वेंटली. I visit France frequently. I visit frequently. I frequently visit France. So here we have placed I visit France frequently. मैं यहाँ पे हम बहुत strongly इस पे emphasis दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा strong, क्योंकि हम emphasis किस पे दे रहे हैं? frequently. I visit France frequently. मैं अक्सर फ्रांस जाता हूँ. I frequently visit France. मैं अक्सर फ्रांस जाता हूँ और मैं फ्रांस अक्सर जाता हूँ में फ़र्क है. यहाँ पे ये वीकर पड़ जाता है, बट यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं. जनरली आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड. जनरली, अब यहाँ पे हमने किस पे एम्फेसिस दिया? जनरली पे दिया. एंड इफ आई से आई जनरली डोंट लाइक स्पाइसी फूड, आई जनरली डोंट लाइक स्पाइसी फूड, यहाँ पे हमने जनरली पे उतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया, स्ट्रेस नहीं दिया. तो इसलिए प्लेस ऑफ एडवर्ब जहाँ हम प्लेस कर रहे हैं उसको सेंटेंस में, उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है. नॉर्मली आई लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक. नॉर्मली आई लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक मीन्स नॉर्मली पे हमने यहाँ पे स्ट्रेस दिया. आई नॉर्मली लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक, यहाँ पे हमने उसको इतना एम्फेसिस नहीं दिया, स्ट्रेस नहीं दिया. सो दिस इज़ हाउ the difference is obvious when we place the adverbs in the weaker position or in the stronger position. Sometimes I get up very early. Sometimes I get up very early. Sometimes या तो हम इन्हें शुरू में लगाएं या बाद में लगाएं तो emphasis ज़्यादा आता है. Sometimes I get up early. I sometimes get up early. इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा जितना अगर हम ऐसे बोलें I get up early sometimes, तो आपका ध्यान sometimes पे जाएगा कि वो कभी कभी जल्दी उठता है. मैं कभी कभी जल्दी उठता हूँ. मैं जल्दी उठता हूँ कभी कभी. हमने यहाँ कभी कभी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया. नाउ वी कम टू द, तो ऐसे ही बहुत सारे वो हैं. I mean to say that this is how the place of the adverb changes the meaning. Now we come to the adverbs of time.
To use more than one adverb of time in a sentence, the following order is followed. How long, how often and when. पहले हम यूज करते हैं how long, फिर how often और फिर हम यूज करते हैं when. उसके बाद ये आता है when. पहले नंबर पे ये आता है, सेकेंड नंबर पे ये आता है, थर्ड नंबर पे ये आता है. How long, ये सीक्वेंस कितना लंबा चला, कितनी बार हुआ और कब हुआ. आई वर्क, पहले हम लिखेंगे आई वर्क. स्टार्ट किया हमने. अब पहले हमने लॉन्ग का लिखना है. फॉर 5 आवर्स. आई वर्क फॉर 5 आवर्स. तो पहले कौन सा आया, ये वाला. फॉर 5 आवर्स एवरी डे. फिर आ गया सेकेंड नंबर. पहले आया फर्स्ट नंबर का ये, फिर आया सेकेंड नंबर. पहले आप टाइम पीरियड लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि कितनी बार आप वो करते हैं एवरी डे. ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे हम आई वर्क एवरी डे फॉर 5 आवर्स. आई वर्क फॉर 5 आवर्स एवरी डे. द मैगजीन वॉज पब्लिश. The magazine was published. पहले लिखेंगे वीकली. ये आ गया हमारा पहले. वीकली कब हुई थी, लास्ट ईयर. अगर वहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है तो मतलब फिर आएगा वीकली लास्ट ईयर, कब हुआ था. ठीक है, द मैगजीन वॉज पब्लिश्ड वीकली लास्ट ईयर. I was abroad. I was abroad कितने पीरियड के, फॉर 3 months लास्ट ईयर. उसके बाद लास्ट ईयर. देन शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल. कितनी देर के लिए, फॉर 2 days एवरी वीक लास्ट ईयर. तो शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल फॉर 2 days एवरी वीक. 2 days के लिए हर हफ्ते लास्ट ईयर उसने हॉस्पिटल में काम किया है. तो आप ऐसे लगाएंगे इस पोजीशन में. So now we come to exercise number 1. Arrange the phrases to build the sentences. The newsletter will be published bi-monthly from next year. चलिए लिखिए. एक्सरसाइज नंबर 1. द न्यूज लेटर है. द न्यूज लेटर विल बी पब्लिश्ड the newsletter will be published bi-monthly from next year. तो पहले हम ये डालेंगे how long, फिर हम डालेंगे when. ठीक है. सेकेंड, द मैगजीन करमवीरा केम. पहले तो आप फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए. द मैगजीन करमवीरा केम. इतना लिख लीजिए पहले. उसके बाद हमने डिसाइड करना है. केम एवरी वेडनेसडे इन दोज डेज. The magazine Karamveera came every Wednesday. Came in those days every Wednesday. In those days. In those days. तो आएगा आपका when. In
those days. ठीक है. I was having a brief stay in Kolkata. First of all, write this. I was having a brief stay in Kolkata. I have a brief stay in Kolkata for हाउ लॉन्ग लिखना है ना हमने, फॉर 8 months. पहले हम ये लिखेंगे फॉर 8 months 2 years ago. 2 years ago. तो पहले हम हाउ लॉन्ग लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 2 years ago. My aunt will be staying with me. My aunt will be staying with me every Sunday next year. Every Sunday next year. ठीक है. Fifth one. The course will be every week for alternate days for 3 months. The course will be for 3 months every week on alternate days. पहले हाउ लॉन्ग, तो पहले आएगा फॉर 3 months. हाउ लॉन्ग हमने याद रखना है पहले. हाउ लॉन्ग 3 months. एवरी वीक, फिर हम टाइम पीरियड लिखेंगे. हाउ ऑफन, एवरी वीक. देन वी विल राइट ऑन ऑल्टरनेट डेज. नो, ऑन ऑल्टरनेट डेज एवरी वीक. ऑल्टरनेट डेज तो हो गया आपका हाउ ऑफन. फॉर 3 months हमारा हो गया हाउ लॉन्ग. सो एवरी वीक द कोर्स विल बी फॉर 3 months on alternate days every week. The course will be for 3 months. The course will be for 3 months. Alternate days every week. Will be on alternate days every week for 3 months. The course will be every week. हर हफ्ते तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है. ऑन ऑल्टरनेट डेज, ये भी फ्रीक्वेंसी बता रहा है. फॉर 3 months द कोर्स विल बी ऑन ऑल्टरनेट डेज एवरी वीक फॉर 3 months. और 3 months लास्ट में आएंगे.
alternate days every week for 3 months. The course will be for 3 months on alternate days. No, it should be changed. For 3 months. Course will be for 3 months. Every week. On alternate days. Six. The नीला कुरिंजी फ्लावर ब्लूम्स. तो पहले तो हम ये लिख लेंगे, द नीला कुरिंजी द नीला कुरिंजी फ्लावर ब्लूम्स. पहले तो हमने मेन सब्जेक्ट लिख लिया. नाउ फॉर 3 months blooms only for 3 months. The Neelakunj flower blooms only once in 12 years. Blooms for 3 months only for 3 months once in 12 years. Only for 3 months once in when on the hills once in 12 years. Only for 3 months on the hills of Munnar. Only once in 12 years. बिल्कुल, मैं उनको सुबह भी समझा के आई हूँ कि मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं दिया कि उन्होंने घर से वीडियो ना देखा. और इसमें ये जो दिसंबर में मैंने ली है ना, मैंने पूरे 5 दिन सब, मैंने जितनी भी ये लीव लगी है मैंने सब दिन वीडियो देखा. ठीक है, मैंने उनको सुबह यही बोला था कि मेरी बात भी थी सर. My mother visits me at my hostel. My mother visits me at
my hostel. My mother visits me at my hostel. How long? पहले हम लिखेंगे how long. My mother visits me at my hostel for 2 days every weekend. For 2 days. फिर आएगा हमारा how often means every weekend. In the evenings. Okay, उसके बाद आएगा when. First of all, we have to write how long, then we have to write how often, and in the last we will mention when that action happened. There will be a school inspection. First of all, we will write this part. There will be a school inspection. First of all, we will write for 2 days. Right? On Thursday. नहीं, on Thursday बाद में आएगा क्योंकि when बता रहे हैं. 2 days. Next week. On Thursday. So now we will read it once more. If we need to change something, there will be a school inspection for 2 days next week on Thursday, right? 9th one. I do my homework for 3 hours every day. I do my homework for 3 hours. First of all, we will write how long, and then we will write how often, and at the last we will write when. Our driver will be available. Our driver will be available अब हमारे पास for तो नहीं है, how long नहीं. From 8 to 8 लिखेंगे हम. From 8 to 8, 8 a.m. to 8 p.m. right? From 8 to 8 from Monday to Saturday. Every week. First of all. Our driver will be available from 8 to 8 p.m. every week from Monday to Saturday. ठीक है जी. So with this we have completed our exercise number 1 that was on page number 88, and we will start tomorrow from page number 89, that is adverbs of manner. So till then you revise it and practice. Okay.